Hello everybody, welcome in my channel Homework with Ananya. So let us get started with our today's homework solutions of English. So as you can see the question number 1 and the question number 2 of English along with the answers on the screen. So the question number 1 is use the correct degree of adjective to complete the sentences. Okay. A part is he is dash then his brother, and in bracket it's intelligent. Okay, so in this question what we have to do, we as the degree of means the adjective will not be given there. Okay, it would be blank. At the place of the correct answer it will be given blank, and you have to think about it that which degree of adjective after converting this intelligent, right now it's in positive degree. Okay, so then will it be in comparative degree or in superlative degree? We have to think about this. And so as here we could see that he is dashed and his brother, we can say that they are doing some comparison. Okay, so the answer will be he is more intelligent than his brother. Okay, now B part. It's the same. इसमें भी हमें सोचना होगा कि कौन सा आ सकता है, कौन सी हम इसमें जो वर्ड दिया हुआ है उसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं. ओके, तो B part is Shakespeare was dash प्ले राइटर इन इंग्लिश. ओके, ये देखिए यहाँ पे ग्रेट. तो जो ग्रेट है ये ग्रेट अभी कौन सी डिग्री में है? पॉजिटिव डिग्री में. ओके, अब हमें ये भी सोचना होगा कि ये कंपैरेटिव डिग्री में आएगा या फिर ये सुपरलेटिव डिग्री में आएगा. यस, तो अब आया कि शेक्सपियर was the dash प्ले राइटर इन इंग्लिश. किसी से कंपैरिजन तो चल नहीं रही है. यस, तो जब किसी से कंपैरिजन नहीं चलती है तब वहां पे सुपरलेटिव डिग्री आती है. ओके, सो द आंसर विल बी शेक्सपियर वाज द ग्रेटेस्ट राइटर इन इंग्लिश. ओके, नाउ हिंदी. निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए. इजी है बहुत. कुत्ता का कुत्ते, बच्चा का बच्चे, पत्ते का पत्ता और घोड़े का घोड़ा. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. एक वचन एवं बहुवचन के 4 शब्द लिखिए. तो एक वचन में लिखा है चिड़िया, मेला, चम्मच, पुस्तक. बहुवचन में लिखा है तारे, मेले, चावल, किताबें. ओके, नाउ मैथ्स. And the smallest number having 4 different prime factors. Can you find me? Okay. तो देखिए यहाँ पे मैंने जो क्या किया है, अब प्राइम नंबर्स. अब देखिए जब 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स है, यस, प्राइम फैक्टर्स, तो उसके लिए मैंने 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स लिए कि मुझे मतलब मैंने सोचा कि मुझे बस अब एक ऐसा जो है नंबर चाहिए जो 2 से भी डिविजिबल हो, जो 3 से भी हो, जो 5 से भी हो, जो 7 से भी हो. ओके, अब देखिए मैंने थोड़ी देर सोचा, मुझे एक नंबर लगा कि 210 2 से डिविजिबल हो जाएगा. क्यों? लास्ट डिजिट हमारी इवन है. ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि देखिए 2 प्लस 1 प्लस 0 is equals to 3. तो ये 3 से डिविजिबल है, तो इसलिए 3 से भी हो जाएगा. अब 5 का क्या था कि अगर नंबर के एंड में 5 या 0 आता है, 5 से डिविजिबल है क्योंकि 0 आ रहा है. अब 7 का डिविजिबिलिटी रूल हो सकता है आपने ना पढ़ा हो. ओके, स्टिल ये 7 से भी डिविजिबल है. लेकिन
ओके, क्योंकि मैंने ये फाइंड करके बताया आपको। नाउ हियर इज द वन मिनट में आपको क्वेश्चन नंबर 2 का फुल आंसर अलॉन्ग विद द क्वेश्चन बताती हूँ। नाउ question number 2 state whether the following statements are true or false. Okay, A part, if a number exactly divides the sum of three numbers, it must be exactly divide the numbers separately. तो ये true है. If a number is divisible by both 2 and 3, then it is divisible by 12 also. Is it true? No. It is false. It's not true. Okay, ये देखिए हम जो true होंगे ना, जो true होगा मैं उसके पार्ट के आगे यहाँ पे टिक लगा दूंगी और जो false होगा उसके पार्ट के आगे क्रॉस लगा दूंगी, ठीक है। Now, C part, a number with 3 or more digits is divisible by 6 if the number formed by its last two digits, ones and tens, is divisible by 6. Is it true? No, it's false. D part, a number with 4 or more digits is divisible by 8 if the number formed by the last 3 digits is divisible by 8. It's true. You know how? Because जो 8 का जो divisibility rule है exactly यही है। अगर किसी नंबर की लास्ट 3 digits 8 से divisible है तो पूरा नंबर ही 8 से divisible है। Okay, that is why it's true. Now, E part, if the sum of the digits of a number is divisible by 3, then the number itself is divisible by 9. Is it true? No, it's not true. Yes. Now, F part, all the numbers which are divisible by 4 may not be divisible by 8. It's also false, okay? Now, next, science. What is anemia? Write two symptoms of anemia, okay? Now, answer is anemia is a disease caused due to deficiency of iron, okay? यहाँ पे of symptoms, person gets tired very quickly and lack of sleep, okay? Now fill in the blanks. Deficiency of dash causes swollen and bleeding gums. किसकी deficiency से होता है ये? Vitamin C की deficiency से. Dash is necessary for strong bones and teeth. क्या necessary है? Vitamin D. Okay? Now, it's now social science. That question number 1, India is a cellular state. Justify the statement. Answer is our constitution does not discriminate anyone on the basis of caste, creed and gender. Everyone in India is free to practice any religion. There is no official religion in India, hence making it a cellular country. Okay. Then question number 2 is, draw a neat and well level diagram of heat zones of the earth. Okay, तो देखिए ये आपको ऐसा डायग्राम बनाना है। ओके, ये क्या है आपका? ये आपका फ्रीज्ड जोन होता है, ये वाला। ओके, वंस अ मिनट, ये होता है आपका फ्रीज्ड जोन और ये भी ऐसे ही फ्रीज्ड होता है, बिल्कुल फ्रीज। ओके, then here is Arctic Circle where it's 66.5 degree, then Tropic of Cancer and Antarctic Circle. Okay, ये देखिए आर्टिक सर्कल के यहाँ पे मैं आपको ये बात बता देती हूँ, यहाँ पे हुआ नहीं था आई थिंक, वंस अ मिनट, नहीं सही है, यहाँ पर नहीं होना है कुछ, जो होना है वो यहाँ पे करिएगा, यहाँ पे एक लाइन और बना दीजिएगा। ओके, एक लाइन आई थिंक यहाँ पे बनी नहीं थी क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एंटार्क्टिक सर्कल हमें अलग अलग दिखाना है। ओके, नाउ कंप्यूटर,
वैसे पहले संस्कृत का, इसके बाद जो है संस्कृत का होमवर्क दिया था, बट स्टिल हम संस्कृत का कंप्यूटर के बाद करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 is how can we create scrollable text in HTML? scrollable text पता है आपको क्या होता है? I will just opening, okay? आपको मैं scrollable text दिखाती हूँ अभी, okay? आपको एक वेब पेज दिखाऊंगी मैं, उस पे मैंने scrollable text लिखा है, बनाया है, ओके? ओके, अगर आपको ये विजिबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा टॉप पे माय स्कूल करके ये टेक्स्ट जा रहा है, यस। तो ये जैसे जा रहा है, देखिए इधर से उधर चला गया, अब यहाँ से वापस आ गया, यस। तो ये आपका स्क्रॉलेबल टेक्स्ट है, ओके। नाउ answer is using the marquee tag. We can scroll our text on the web page. Okay. Now question number 2 is explain any two attributes of marquee tag. Now scrolling in this attribute. First attribute I have written scrolling, in which it is set it by default moves the text right to left. Okay, right to left continuously और लिख दीजिएगा यहाँ पे, okay. Continuously, because it moves continuously, it doesn't stop. Now then second attribute here, it's up. In this attribute the text has gives up appropriate space. टेक्स्ट को एक हम अपना जो भी टेक्स्ट हमें करना है उसको हम हाइट विड्थ देते हैं, ओके। एंड इट मूव्स अप एंड डाउन टू अप, ओके। नाउ संस्कृत क्वेश्चन नंबर 1, अस धातु के रूप तीनों पुरुषों व तीनों वचनों में लिखिए। तो देखिए यहाँ से मैंने पुरुष लिखे, ये सारे यहाँ पे तीनों पुरुषों में ये लिखा है अस धातु का, ओके। और यहाँ से ये तीनों वचनों में भी लिखा हुआ है, ओके। तो प्रथम पुरुष में अस्ति, प्रथम पुरुष एक वचन में अस्ति, प्रथम पुरुष द्वयवचन में स्तः, प्रथम पुरुष बहुवचन में सन्ति, मध्यम पुरुष एक वचन में असि, द्वयवचन में स्तः और बहुवचन में स्थ, उत्तम पुरुष एक वचन में अस्मि, द्वयवचन में स्वः और बहुवचन में स्मः। निम्नलिखित में से पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्दों को छांटकर अलग अलग लिखिए। डोला, बालकौ, सोचिके, अजा, जना, चंद्रौ, गजा, चटका, कुकरौ और चालिके। तो देखिए इन्हें मैंने यहाँ पे टेबल में अरेंज करा है, ठीक है। बालकौ, चंद्रौ, कुकरौ, गजा और जना पुल्लिंग है। डोला, चालिके, चटका, अजा और सोचिके स्त्रीलिंग है। आपको ये इतना आपको बात क्लियर हो गई? और मैं आपको एक बात बता देती हूँ, नहीं आई थिंक वो ठीक हो गई थी, इसमें जो है क की एक जगह मिस्टेक थी, वो ठीक कर दी थी आई थिंक मैंने, ओके। So we'll meet again very soon in the next class. Till that, bye bye and have a wonderful day.